Now I just want you to turn to somebody and say, that smooth stone. और मैं चाहता हूं कि आप किसी के पास मुड़कर उनसे ये कहे, वो चिकना पत्थर. Come on, once again, everybody. चलो फिर एक बार सभी जन, वो चिकना पत्थर. Bolo. That smooth stone. वो चिकना पत्थर. Amen, amen, Amen. amen. Now, before I go into the entire series in a new way today, और आज एक नई तरीके से इस श्रृंखला में जाने से पहले let us read the base verse and then let me go ahead in what I'm going to talk about. जो मूल वचन है, आइए हम पहले उसे पढ़ ले और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मैं किसके बारे में बात कर Or रहा let me just reverse it. हूं. या फिर मुझे थोड़ा उसको उल्टा करने दो. Whenever we are in the Lord Jesus Christ, जब कभी भी हम यीशु मसीह में होते the हैं, biggest problem with everybody is being in Jesus is that everyone wants to serve the Lord. Everyone wants to serve the Lord in whatever way we can. और सबसे बड़ी समस्या यीशु मसीह में यह है कि सभी जनों को प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करना है. जिस किसी भी तरीके से वो सेवकाई कर सकते हैं, वो करना चाहते हैं. The problem is not serving God, देखो, परमेश्वर की सेवकाई करने ये समस्या नहीं है, but it is how we serve God. लेकिन जिस तरीके से हम करते हैं ये समस्या है. Yeah, so when in these days, especially now when the corona impact is worldwide and people are dying and people are recovering, many are healed, many people have been cured, and when all this chaos, there is one cry that is coming from the body of Christ. और इन समयों में, ये कोरोना के समयों में, जहाँ पर पूरा जगत जो है इस कोरोना से पीड़ित है और लोग इससे रोगी हो रहे हैं और कुछ बेहतर भी हो रहे हैं, कुछ चंगे भी हो रहे हैं, और इस सारी गड़बड़ी में कलीसिया से एक आवाज उठ रही है और वो ये है, And that is, some people, not all, but some people have a desire that they want to serve God. कुछ लोगों में ये इच्छा है कि वो परमेश्वर की सेवकाई करें. And in all this chaos, they are praying to God that show us a sign, show me something that I can know that it is the will of God, that is your will, Lord, and I will start serving you. और इन सारे समय में, सारी गड़बड़ी में लोग परमेश्वर से ये मांग रहे हैं कि परमेश्वर मुझे कोई चिन्ह दिखा जिससे मैं ये समझूं कि मैं तेरी सेवकाई करूं. And in all this kind of a chaos and all this kind of a trials, these people are praying and fasting and trying to seek God, and they have already begun. Some of them have already come out and begun serving the Lord in whatever way they can. और इस सारी गड़बड़ी में बहुत सारे लोग जो है वो पहले से ही बाहर निकल चुके हैं. वो उपास प्रार्थना भी कर रहे हैं और वो बाहर निकल भी चुके हैं परमेश्वर की सेवकाई करने. जिस किसी भी तरीके से वो सेवकाई कर सकते हैं उस हिसाब से वो कर रहे हैं. But somehow the other, that still there is a deep down desire inside their heart that how can I serve the Lord better? लेकिन कई तो उनके दिल के गहराइयों में एक इच्छा है कि मैं परमेश्वर की सेवकाई और बेहतर तरीके से कैसे करूं. Or is it the will of God? Or what is the will of God? या परमेश्वर की इच्छा क्या है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं. And they're trying to understand, they're trying to, go into the Word of God and ask the men of God and people of God who are seniors to them, and they're trying to know what is God's will for their service unto God. और वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इच्छा क्या है. परमेश्वर के वचन में जाकर वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर के सेवकों से पूछकर वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों से जो उनसे पहले मसीह में हैं उनसे पूछकर वो कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और वो सेवकाई कैसे करे, ये वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. And in all this, desires of theirs, और उनके इन सारी इच्छाओं में when they are praying, जब वो दुआ कर रहे हैं, they are seeking God's direction. वो परमेश्वर की ओर से दिशा वो मांग रहे हैं. Now, when I was praying, when I was, getting ready for this new series, और जब मैं इस नई श्रृंखला के लिए तैयार हो रहा था, I asked the Lord, मैंने परमेश्वर से पूछा, show me what you want me to speak to your body. परमेश्वर मुझे दिखा कि तू क्या चाहता है कि मैं आपके शरीर के साथ बात करूं. And the Lord gave me this particular topic. और परमेश्वर ने ये जो विषय है परमेश्वर ने मुझे दिया. And I have to be very, very frank with you. और मुझे आपके साथ बहुत ही खुला ऐसा बात करना है.
that I really don't know what the Lord is trying to tell the body of Christ for these days especially. और मैं सचमुच ये नहीं जानता कि इन दिनों के लिए परमेश्वर उसके शरीर के साथ क्या बात करना चाहता है Through this message, इस विषय के द्वारा। I don't know exactly where the Lord is going to lead us. मैं ये नहीं जानता कि सचमुच परमेश्वर हमें कहाँ ले जाने वाला But है। one thing I can tell you, लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, whatever you are trying to serve the Lord in whichever department it may be, whichever calling it may be, जिस किसी भी विभाग में या जिस किसी भी बुलावे में आप परमेश्वर की सेवकाई करने की कोशिश कर रहे हो, the Lord wants you to be an effective servant. परमेश्वर ये चाहता है कि आप बहुत ही प्रभावशाली सेवक बने, And your ministry should be effective. और आपकी जो सेवकाई है वो भी प्रभावशाली बने। So let us go in the Word of God and let us get the direction from the Holy Ghost to know exactly how the Lord wants to prepare His bride in these days. तो आइए आज के वचन में हम चले जाएं और आइए हम अपने आप को तैयार करें पवित्र आत्मा से ये जानने के लिए कि पवित्र आत्मा की इच्छा और परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए उसके दुल्हन के लिए क्या है। Yeah, amen. Let's open our Bibles everybody to 1 Samuel 17 and let us read from verses 37 onwards. और आइए हम पढ़ेंगे, अपने बाइबल को खोलेंगे पहले शमूएल इसका 17वां अध्याय और वचन 37 से आगे हम पढ़ेंगे। David said, "Moreover, the Lord had delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear. He will deliver me out of the hand of the Philistine." And Saul said unto David, "Go, and the Lord be with thee." Amen. Verse 38, and Saul armed David with his armor, and he put an helmet of brass upon his head, and also he armed him with a coat of mail. And verse 39, and David girded his sword upon his armor, and he essayed to go, for he had not proved it or tested it. And David said unto Saul, "I cannot go with these, for I have not proved them or tested them or used them." And David put them off him. Verse 40, and he took his staff and in his hand and chose him 5 smooth stones out of the brook and put them in a shepherd's bag, which he had even in a scrip, and his sling was in his hand, and he drew near to the Philistine. पहले शमूएल इसका 17वां अध्याय वचन 37 से वचन 40 तक। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। वचन 38, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और जीलम उसको पहनाया, और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। वचन 40, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाई की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फलिश्ती के निकट चला। Amen, amen. Now we all know this incident very well. और हम सभी जन इस घटना को अच्छी तरीके से जानते हैं। We know that how, David had an encounter with Goliath, and that was his time of promotion. और हम सभी जन जानते हैं कि कैसे गलियात और दाऊद का आमना सामना हुआ और दाऊद का उस वक्त प्रमोशन का वक्त था। Amen. So I'm not going to go into the details of this entire incident. देखो, इस घटना के गहराइयों में मैं नहीं जाने वाला। But what I'm going to focus upon is only one section of this entire episode. लेकिन ये पूरी घटना जो है इसमें का सिर्फ एक भाग पर मैं ज्यादा भार देने वाला हूँ या ध्यान देने वाला हूँ। Here we see that David is trying the entire armor of Saul, which Saul gives to him. यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है शाऊल के जो सारे वस्त्र है जो लड़ाई के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पहनने की कोशिश कर रहा है। And when he wears it and tries to move around, और जब वो उसे पहनता है और चलने की कोशिश करता है, the Bible states that he says that he had not proved it or not tested it, and so that's why David says to Saul that I cannot wear these. और दाऊद ने उसे जब उसने पहना तब वो चलने की कोशिश कर रहा, वो पहन कर वो चल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसने उसे परखा नहीं था। इसलिए दाऊद शाऊल से कहता है कि मैं इन्हें नहीं पहन सकता क्योंकि मैंने इन्हें परखा नहीं है। Always, whenever you go for your biggest battles or any battle in your life,
जब कभी भी आप आपके कोई भी युद्ध के लिए जाते हो या आपके जिंदगी के बड़े बड़े युद्धों में आप चले जाते हो, always use that weaponry which you are used of using. हमेशा वही शस्त्र की इस्तेमाल करो जो आप हमेशा इस्तेमाल करते आए हो, Yeah, which you are used of. जिसकी आपको आदत जिसकी है. आपको आदत है. You know, this is very, very important. देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. Sometimes we use the king's weaponry thinking that we can win a war or we can win a particular contract or we can win something, that is there that is challenging us. देखो कभी कभी हम राजा के जो वस्त्र है या शस्त्र है वो हम इस्तेमाल करते हैं और हमें ये लगता है कि ये शस्त्र को लेकर हम सारे युद्ध जीत सकते हैं, सारे जो ऑर्डर से वो हम जीत सकते हैं. But let me tell you, that is the weaponry of a king. लेकिन मुझे आपको बताने दो, ये जो शस्त्र है ये राजा के हैं. Though it may be of a king, वो राजा के होंगे, but you are not used of using it. लेकिन आपको उसका इस्तेमाल करने का आदत है ही नहीं. आप जानते ही नहीं है कि आपको उसकी आदत ही नहीं है उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, और आगे करने को भी आए तो उतना टाइम नहीं है. You don't have that much amount of time or you don't have that much amount of practice sessions. आपके पास उतना टाइम है नहीं, समय है नहीं, और आपने उतना प्रैक्टिस किया भी नहीं है. So let me tell you, people of God, तो मुझे आपको बताने दो परमेश्वर के लोगों, God has trained you in a certain way. परमेश्वर ने आपको एक अलग तरीके से प्रशिक्षण दिया है. He has given you speciality in certain things which nobody has that skill. परमेश्वर ने आपको कुछ गुणों से, आपको कुछ विशेषताओं से भरा है, जिस विशेषता को उसने और किसी को नहीं दिया है. And you are unique, you are specialized in that particular area. और आप अनोखे हो, और उस भाग में आप बिल्कुल अनोखे हो. And you may think, और आप सोचोगे that how can I win a war with these redundant methods which I use in the jungle. और आप सोचोगे कि ऐसे पुराने शस्त्रों के साथ या तरीकों के साथ जो जंगल में इस्तेमाल किए जाते हैं, इन चीजों से मैं एक युद्ध या जंग कैसे जीत सकता हूं. You can win it because it's not by might nor by power but by the Holy Ghost it shall be done. Hallelujah. आप जीत Amen. सकते हो क्योंकि वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा से आप वो जंग जीतने वाले हो. Amen. It's only important in how effective you are in using your weaponry. ये बस इतना ही महत्वपूर्ण है कि आपके शस्त्र आप कितने प्रभावशाली तरीके से आप इस्तेमाल करते हो. Okay, this was a bonus that I gave you today, free of cost. देखो ये एक बोनस था जो मैंने आपको मुफ्त आज दिया है. Now let me go further now. चलो आइए अब आगे मैं बढ़ता So हूँ. what we see that David takes 5 smooth stones from the brook nearby. तो हम देखते हैं कि दाऊद जो है नाले पर जाकर 5 चिकने पत्थर वो चुन लेता है. Don't use the word nala, because nala is a very odd thing in our people. So it's, I don't know what you call it, a stream, झरना. एक झरने के पास जाके वहां पर उसने 5 चिकने पत्थर लिए. Come on, say that. और दाऊद जो है एक झरने के पास जाकर वहां पर 5 चिकने पत्थर जो है वो चुन कर लेता है. And then he uses only one and he comes to face the Philistine now. और वो फिलिस्ती के आगे उसका सामना करने के लिए वो आ जाता Now है. my whole message, the entire series is going to be only upon that one smooth stone. अब मेरा जो सारा संदेश और ये पूरी श्रृंखला जो है बस उस एक चिकने पत्थर पर ही है. Yeah, turn to somebody and say, that smooth stone. चलो किसी के पास मुड़कर उनसे कहो वो चिकना पत्थर. Come on. Say to somebody, hey, come on. चलो. वो चिकना पत्थर बोलो, come on. वो चिकना पत्थर. मराठी में सांगा एकमेकाला तो गुळगुळीत दगड बोला एकमेकाला. तो गुळगुळीत दगड. Amen. Let us read that once again carefully. Verse 40 of 1 Samuel 17. आइए हम फिर एक बार उस वचन को ठीक से पढ़े. पहले शमूएल इसका 17वां अध्याय वचन 40. And he took his staff in his hand and chose him 5 smooth stones out of the brook. तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले झरने में से 5 चिकने पत्थर छांट कर लिए. Now, whenever God has chosen you, देखो जब कभी भी परमेश्वर ने आपको चुना है, I repeat once again, मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, if God has chosen you, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, how will I know?
मैं कैसे जानूंगा that God has chosen me? कि परमेश्वर ने मुझे चुना है? What are the signs that I should understand that God has hands upon me and He has chosen me? वो कौन से चिन्ह है कि जिससे मैं पहचानूंगा कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और परमेश्वर का हाथ जो है मेरे जिंदगी के ऊपर है? The Bible states in Matthew chapter 20 and verse 16 बाइबल कहता है मत्ती रचित सुसमाचार इसका 20वां अध्याय वचन 16 में that all are called, कि सभी बुलाए गए हैं but few are chosen. लेकिन कुछ ही चुने हुए You know, हैं। I often wonder that why not all, could stay up till morning 3 o'clock, get up in the morning at 3 and pray. Why not all pray for 16 hours? Why not all pray for 11 hours? Why not all can sacrifice picnics? Why not all can sacrifice mobiles? Why not all can sacrifice their laptops? Why not all can sacrifice their TV and sit for hours before the Lord? Why not all? मैं अक्सर हमेशा ये सोचता था कि क्यों नहीं कि सभी जन चुने गए हैं, कि क्यों नहीं सभी जन 16 घंटे दुआ करेंगे, कि क्यों नहीं कि सभी जन 11 घंटे दुआ करेंगे, क्यों नहीं सभी जन अपने पिकनिक का अर्पण या उसे त्याग देंगे, कि क्यों नहीं सभी जन अपने मोबाइल को त्याग देंगे, कि क्यों नहीं सभी जन अपने लैपटॉप को त्याग देंगे, कि क्यों नहीं सभी जन Why not all can, just live a life according to, a life segregated for God? क्यों नहीं हर एक जो है वो परमेश्वर के लिए एक अलग जिंदगी जिए? One day I came to know this verse in the Bible that was many years ago actually. और बहुत साल पहले मुझे ये वचन जो है बाइबल में से ये पता चला That all are called, कि सभी जन बुलाए गए but a few are chosen. लेकिन कुछ ही चुने गए। Amen, amen. That explains the answer. और इसी से That explains the question. और इसी से जो सवाल है ये इसका अर्थ समझ में आता ये है। समझ में आता है, इसका सवाल का जवाब मिल जाता है। Amen. So my question, my point is that how do I know God has chosen me? तो मुझे कैसा पता चलेगा कि परमेश्वर ने मुझे चुना है? ये मुद्दा है मेरा। See, that when David went to the brook, जब दाऊद जो है वो झरने के पास गया, he didn't take a big stone. उसने वहां से एक बड़ा पत्थर नहीं चुना, He didn't take a middle-sized stone. उसने एक मध्यम size का. मध्यम साइज का एक पत्थर नहीं चुना। He took 5 small stones which were made smooth by the flow of the brook, the water that is in the brook. लेकिन दाऊद ने 5 छोटे पत्थर चुने जो चिकने थे और वो चिकने वो झरने के बहाव से वो बने थे। And such a stone that can fit in a sling, in his sling. और ऐसे पत्थर जो ऐसा पत्थर जो उसके गोफन में बैठ सकते हैं। Yeah, now it's important. Some people may look at somebody else and feel, oh, he's such a great man of God. He's such a big man of God. Let me tell you, you may be small because you have equal importance. Why? Because where he can't fit, you can fit. Amen. देखो कभी-कभी आप सोचोगे कि वो कितने महान परमेश्वर के सेवक है, कितने बड़े परमेश्वर के सेवक है और आप छोटे हैं, लेकिन आप छोटे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जहां पर आप बैठ सकते हो वो बैठ नहीं सकते। Amen. Amen. It was not a big stone that brought down Goliath. It was a small stone that brought down Goliath. देखो Come वो on. एक बड़ा पत्थर नहीं था जो जिसकी वजह से गलियात मरा, लेकिन वो एक छोटा पत्थर था जिसकी वजह से गलियात मार गिरा गया। Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on. So, people of God, तो परमेश्वर के लोगों, you are wondering आप ये सोच रहे हो that how can I know that God has called me? कि मैं कैसे जानूंगा कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया How है? can I know that God has chosen me? मैं कैसे जानूंगा कि परमेश्वर ने मुझे चुना है? Here it comes. Point number 1, everybody. Listen carefully क्या now. आता है आपके पास? मुद्दा क्रमांक 1 और ध्यान से सुनिएगा। Let me go to the history of that small stone, that smooth stone. देखो उस चिकने पत्थर के इतिहास में मैं जाता हूँ। Are you ready for a journey in time? देखो समय के या इतिहास में जाने के लिए क्या आप इतिहास के सफर में जाने के लिए क्या आप तैयार हो? Are you ready? क्या आप तैयार हो? Amen. Amen. I can't hear you. Amen. मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। आमेन। Here we go, everybody. Listen आइए carefully. यहाँ पर हम जाते हैं। It ध्यान was से some सुनो। thousands of years ago. हजारों साल पहले There was a big mountain where, there's a valley, and next to the valley, there is a big mountain where this war was going to take place. और एक बड़ा पर्वत था और पर्वत के वहां पर एक तराई थे और उस तराई में ये जो युद्ध है ये होने वाला था।
हजारों सालों के बाद, after thousands of years. हजारों सालों बाद यह युद्ध वहां पर होने वाला But था। there was this mountain, and in this mountain there flowed a massive river from the mountain. और इस पर्वत जो था, ये बहुत ही बड़ा पर्वत था, और इस पर्वत के ऊपर से एक महान नदी जो है वो बह रहा था। There was a waterfall falling with full force and would bring down many things that came into the pathway of the river, of the waterfall. और वहां पर एक झरना था जो बहुत ही प्रभावशाली सामर्थ्य से बहता था, और उसके आड़े जो कुछ भी आता था उसे तोड़कर उसे ले जाता था वो झरना, ऐसे महान तरीके से वो बहता था। And on such a scenario as this, and having such a scenario as this, और ऐसी परिस्थिति में, and there was a there is this big mountain there, वो महान पर्वत वहां पर था, and there was a big rock that was connected to that mountain. और उस पर्वत से एक बड़ी चट्टान जो है वो जुड़ी हुई थी। And a big rock, पत्थर, big पत्थर। बड़ा पत्थर जो है उस पर्वत के साथ जुड़ा हुआ था। And this water kept on gushing over it for many years. और बहुत साल तक पानी जो है वो उस पत्थर के ऊपर से बहता रहता था। And as years passed by, और जैसे समय बीता, some droplets of water, some small springs of water found way between the rock. और पानी के कुछ कतरे जो है वो उस पत्थर के बीच में वो चले गए, उनको जगह मिली वहां पर घुसने के लिए। And as they found the way inside that crevices into the rock, और जैसे ही उस चट्टान में उन्हें जगह मिली अंदर घुसने के लिए, they began to go every time the flow of the river, the flow of the waterfall, and these small springs bursting inside the rock now. और जैसे उन्हें अंदर जाने को मौका मिला, और बार ये जो बहाव है, पानी का बहाव है, उसके अंदर ये पानी के जो छोटे-छोटे झरने थे उसमें घुसने लगे। And as they went on years, they made a big dent into the rock and the mountain. और जैसे वो उसमें से between the rock and the mountain. और जैसे वो बहने लगे, और बहते बहुत समय के बाद उन्होंने उस पत्थर के बीच में और उस पर्वत के बीच में उन्होंने एक दरार उन्होंने बना लिया। And as the gap was formed, और जैसे वो दरार वहां पर पैदा हुआ, the flow of the water increased. वहां पर पानी का बहाव जो है वो बढ़ गया। As it increased, as it went on, और जैसे ये बढ़ता गया, the gap intensified. वो जो दरार है वो बड़ी होती गई। And as it intensified, the flow of water intensified. और जैसे वो बड़ा होता गया, पानी का जो बहाव है वो भी बढ़ता गया। One fine day, एक दिन, after many years, बहुत सालों के बाद, I don't know how many years, maybe 100 years, maybe 200 years, I don't know, मैं नहीं जानता, शायद 100 साल के बाद या 200 साल के बाद, मैं नहीं जानता, that rock was lost off from that big mountain. वो जो पत्थर उस पर्वत पर था वहां से वो उसे निकाला गया। And as it came off, और जैसे वहां से वो उसे निकाला गया, whatever would come in the way of the pathway of the waterfall, और उस झरने के मार्ग में जो कुछ भी आता था would come down tumbling. वो नीचे उलट पुलट होकर आता था। And the same was the state of this big gigantic rock. और इस बड़े पत्थर का, महाकाय पत्थर का भी यही स्थिति, यही हाल हो गया। And it came down rolling from the waterfall. और उस झरने से बहते हुए वो नीचे आ गया, bouncing from rock and boulder and banging from stone and pebble and trees and everything. It came down rushing with the flow of the water. और यहाँ वहाँ लगते हुए और चट्टानों पर, पत्थरों पर वो जाके गिरता था, और उसे मार लगती थी, और इसे गिरते वो पानी के बहाव के साथ वो बहने लगा। And when it came, finally it came and landed on the river bed, and was still forced by the full force of the river, step by step into, further more. और ऐसे ही वो पर्वत के ऊपर से लेकर नदी के नीचे तक वो पत्थर को फेंका गया, लेकिन वहां पर भी वो नहीं रुका, लेकिन पानी के जो
बहाव की वजह से उस पत्थर को आगे ढकेला गया And as it went on rolling and rolling and rolling, और जैसे वो आगे बढ़ता गया as the speed of the river, the intensity of the river decreased, the motion of this rock began to become still. और जैसे ही उस पानी का भाव या उस नदी का जो बहाव है वो कम होते गया, वैसे ही ये पत्थर का हिलना भी कम होते गया. But a time came when it became into a smaller size and settled down in the part of the riverbed one fine day. लेकिन एक समय ऐसा आया कि ये जो बड़ा पत्थर है वो छोटा होकर उसी नदी के किनारे कहीं पर आके वो रुक गया. And the water began to still flow over it and aside it and under it and all the sides of the rock. और पानी फिर भी उस पत्थर के ऊपर नीचे आजू बाजू सभी जगह से बहने लगा. When it was lost off from its mountain, जब उसे उस पत्थर उस पर्वत से निकाला गया, that time it was huge. उस वक्त वो बड़ा था. And when it landed on the riverbed, लेकिन जब नीचे किनारे पर आया, its size had diminished. वो उसका जो आकार है वो छोटा होता गया. And now और अब something else began to work. It was not a force of the river. देखो अब उस पर कुछ और काम करने लगा, पर वो पानी का बहाव नहीं था. It was the slow flow of the brook water upon the rock. लेकिन इस बार उस झरने के कोमल बहाव जो है वो उस पत्थर पर काम करने लगा. And as it went on, और जैसे ये जारी रहा, this rock began to break up into small pieces of its own. ये जो पत्थर है वो खुद ही में छोटे छोटे टुकड़ों में बटने लगा या टूटने लगा. But when they broke off, लेकिन जब वो टूट गए, they were all irregular in shape, totally unbalanced in shape. उनका जो आकार था वो बहुत ही अजीब था और सही नहीं आड़ा था. टेढ़ा आकार. उनका समतोल, उन्हें कोई समतोल नहीं था. Yeah, but now लेकिन अब the slow water of this brook began to work upon the same the small stones that are broken from that big rock. लेकिन अब वो झरने का जो पानी है, जो कोमल बहाव है, वो उसी पत्थर के जो बड़ा पत्थर था जो टूटकर नीचे आया और अब जहां पर वो टूटकर अलग अलग हो गए, उन भागों पर वो काम करने लगा. Now the slow water, happened to brush and, chisel and smooth all the fragmented parts of the stone. अब ये जो पानी का कोमल बहाव है उस पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उस पर वो काम करने लगा और उन्हें छाटने लगा. Yeah, as it went on year after year after year after year after year. और जैसे ये बहुत सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, there came 5 stones that took a particular position in the flow of the brook water. उसी जगह पर 5 पत्थर तैयार हुए एक जगह पर एक स्थिति में उस पानी के बहाव में. And they were at such a position. और वो ऐसे स्थिति में थे, Such a position. ऐसे स्थिति में थे, Such a position ऐसे स्थिति में थे where the brook water would make them completely rounded. जहां पर वो झरने का जो पानी है उन्हें पूरी तरीके से गोल आकार कर देगा. And do a finishing over them, making them chikna or Marathi में gulgulit. और उनके ऊपर एक फिनिशिंग या फिर ऐसे कह सकते हैं उन्हें चिकना बना रहा था. Or you can say polishing. या उस पर पॉलिश कर रहे थे. And then one fine day, और एक दिन there came a hand into that same brook water उसी झरने में एक हाथ आया and took those 5 stones और उस 5 पत्थरों को चुन लिया and put it in his scrip. और उसके झोली में भर दिया. And from the 5, और उन 5 में से that one which had allowed the brook to smoothen it, to make it round, to make it awesomely, smooth and polished from all the sides. और उन 5 में से एक पत्थर जिसने उस झरने के पानी को उस परवाना दिया था कि उसे पूरी तरह से सारे जगहों से पूरी तरह से चिकना और गोल कर दे. This hand picks up that one stone ये हाथ जो है
उस एक पत्थर को उठा लेता है and moves that stone in his hand और उस पत्थर को उसके हाथों में हिलाता and है feels its aerodynamics और उसके हवा के बहाव को वो महसूस करता है and understands, this hand understands, और इन हाथों को ये समझ में आता है because his hand has handled many such stones in his childhood days. क्योंकि इन हाथों ने उनके बचपन में ऐसे बहुत सारे पत्थरों को उसने महसूस किया And this है hand feels this aerodynamics of the stone. और ये हाथ जो है इस पत्थर के हवा के बहाव को महसूस करता है And then he और understands फिर वो समझता है this is the perfect stone यही वो सही पत्थर है and puts it in his sling और इस पत्थर को लेकर उसके गोफन में रख देता है and moves it. और उसे घुमाता है And there it goes. And it's over. Game over. One shot. Game over. और फिर वो जाता है लग जाता है और एक ही पत्थर में सब कुछ खत्म सब कुछ खल्लास हो जाता है Hallelujah. हालेलुया People of God, परमेश्वर के लोगों this is exactly what God begins in your life. If He has chosen you, He begins this in your life. तो परमेश्वर के लोगों अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो यही चीज वो आपके जिंदगी में पहले शुरू करता है यही चीज वो शुरू करता है Point number 1. मुद्दा क्रमांक 1 When the finger of God comes upon you, अगर परमेश्वर की उंगली आप पर है yeah. Oh, turn to somebody and say, I like this point. Turn to somebody and say, when the finger of God comes upon you, चलो किसी के पास मुड़कर उनसे ये कहो ये मुद्दा जो है मुझे बहुत पसंद है जब परमेश्वर की उंगली आप पर है yeah, आप पर आती है. आप पर आती है I have chosen you. मैंने तुझे चुना है Amen. Amen. When the finger of God comes upon you, जब परमेश्वर की उंगली आपके ऊपर आती है point number 1 happens. मुद्दा क्रमांक 1 होता And है that is, there will be a breaking apart. और मुद्दा क्रमांक 1 होता है कि वहां पर अलग किए जाओगे Amen. Amen. आपको अलग किया जाएगा. एक दूसरे को बोलो, आपको अलग किया जाएगा. आपको अलग किया जाएगा Once again, come on. फिर एक बार चलो आपको अलग किया जाएगा Once again, come चलो, on. फिर एक बार आपको अलग किया जाएगा जहां पर भी आप जुड़े हो, जिससे भी आप जुड़े हो, जिसकी भी आप जरूरत हो, आपको उस इंसान से, उस चीज से, उस सिस्टम से अलग किया जाएगा. Come on, give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on. People of God, you know something, I'm enjoying this time. परमेश्वर के लोगों आपको कुछ पता है कि ये समय का मैं बहुत आनंद उठा रहा हूँ Because after a long time I can do this. Come on. क्योंकि बहुत समय के बाद मैं ये कर सकता हूँ। I was controlling myself for many months. इतने महीने में खुद को कंट्रोल कर रहा था Yeah, cursed be that corona. उस कोरोना को मैं श्राप देता हूँ Amen, amen, amen. Now, Matthew chapter 10, everybody. अभी मत्ती रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय And let us see this breaking apart today. और आइए हम इस अलग होना इसे हम देखते हैं Matthew 10, everybody. मत्ती 10 सभी जन And let us read from verses 32 onwards. और आइए हम वचन 32 से आगे देखें Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Amen. जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा आमेन Amen, amen. आमेन आमेन Verse 33. वचन 33 But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा Now, this is very important. अब यह बहुत ही महत्वपूर्ण है Whenever we come in the Lord Jesus Christ, जब कभी भी हम यीशु मसीह में आते हैं it is in our mind that, you know, my family also will quickly accept, change, transform, and allow me to serve the Lord. ये हमारे मनों में ही होता है कि हमारा जो परिवार है तुरंत ही परमेश्वर को भी स्वीकार करेगा और मुझे भी परवाना देगा परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए But this doesn't happen. How many experienced it? Can I say amen? लेकिन ये नहीं होता है कितने जनों ने अनुभव लिया है वो सारे जन आमेन कह सकते हैं Amen. Amen. This doesn't happen. ये नहीं होता है It is not a Sunday every day, and it is not a birthday every day. देखो हर दिन इतवार नहीं होता और हर दिन जन्मदिन नहीं होता I sometimes, I don't like birthdays.
देखो मुझे जन्मदिन नहीं पसंद है because it's only one day. क्योंकि वो बस एक ही दिन का होता है. Why should we have birthday only one day? हम जन्मदिन सिर्फ एक ही दिन का क्यों मनाएं? Why not have 10 days birthday? क्यों ना 10 दिन का जन्मदिन मनाएं? It will be very stupid, right? If you have 10 days birthday. देखो ये बहुत मूर्खता भरी चीज होगी कि अगर 10 दिन हम जन्मदिन मनाएंगे. Because if you were not, you didn't take 10 days to be born. देखो आपको 10 दिन नहीं लगे जन्म पैदा होने के लिए. Yeah, एक दिन में काम खत्म हो गया. So I don't like these birthdays. तो इसलिए मुझे जन्मदिन जो है पसंद है ही नहीं. Anyways, but coming back to my point is that it's not a birthday every day. You cannot have, in one day everybody change in one shot done. देखो जो कुछ भी आए हम मुद्दे के पास आते हैं कि हर दिन जन्मदिन नहीं हो सकता कि एक ही दिन में एक ही झटके में सभी जन बदल जाएंगे. ऐसा नहीं होता. Yeah, it is a price that you and I have to pay of coming in the Lord Jesus Christ. देखो ये एक कीमत है जो आपको और मुझे अदा करनी पड़ती है प्रभु यीशु मसीह में आने के लिए. Some people, because of the laziness, are paying a price for 25 years now, even still. और कुछ लोग जो है उनके आलसपन की वजह से आज के तारीख में भी 25 साल हो गए फिर भी वो कीमत अदा ही कर रहे हैं. Because their parents are not even saved even today. क्योंकि उनके माँ बाप जो है आज भी उनका उद्धार नहीं हुआ है. There's no need to pay such a big price for such a small thing. देखो इतने छोटी सी चीज के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा करने की कोई जरूरत नहीं है. You are lazy, you don't pray, and that's why your family is not yet saved. देखो आप आलसी और आप दुआ नहीं करते इस वजह से आज तक आपका परिवार का उद्धार नहीं हुआ है. You got many other extracurricular activities happening of your flesh in your life. आपके जिंदगी में आपके देह के बहुत सारे दूसरे काम जो है वो जारी है. And that's why you don't have time for your spiritual job. और इसी वजह से आपके आत्मिक काम के लिए आपके पास समय नहीं है. That's why your family is still not saved. इसलिए आज तक आपके परिवार का उद्धार नहीं हुआ Now है. listen. तो आप सुनो. So, when you come in the Lord Jesus तो Christ, जब आप यीशु मसीह में आते हो the first test that you have to face is that tell your family that you have accepted the Lord as personal Savior. जो सबसे पहला एग्जाम या परीक्षा जो आपके सामने रखा जाता है वो ये है कि आपको आपके परिवार को ये कहना है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता करके चुना है. Oh my God, how will I do that? ओ मेरे परमेश्वर ये मैं कैसे करूं? My father will kill me if he knows I've accepted the Lord as personal Savior. मेरे पिताजी जो है मुझे खल्लास कर देगा अगर उन्हें ये पता चला कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता करके चुना है. My father will kill my mother if he comes to know that I accepted the Lord as personal Savior. मेरे पिताजी जो है मेरे माँ को मार देंगे अगर उन्हें पता चला कि मेरा उद्धार हुआ है. अरे तेरे आने से पहले किधर तेरे माँ को छोड़ता था वो, उधर भी मारता था वो तेरे माँ को, so कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. But anyways, जो कुछ भी है, we have got hundreds of excuses of hiding our salvation. देखो हमारे 100 कारण होते हैं हमारे उद्धार को छुपाने के लिए. Let me tell you, मुझे आपको बताने दो. the longer you hide your salvation, जितना ज्यादा देर तक आप आपके उद्धार को छुपा कर रखोगे, that much more it will take a time for your family to be born again. उतना ही ज्यादा वक्त और समय लगेगा आपके परिवार को फिर एक बार नया जन्म लेने के लिए या उनका उद्धार होने के लिए. There is no फिर एक बार जन्म, there is नया जन्म. So it will take that much longer a time. उन्हें उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा. Yeah, so people of God, तो परमेश्वर के लोगों, Jesus says very clearly here, यीशु जो है यहाँ पर बड़े साफ तरीके से कहता है, if you do not accept me, if you do not proclaim and declare me in front of your people, I will not accept you, I will not recognize you, I will not declare you in front of my Father which is in heaven. That's clear. अगर आप यीशु अपने वचन में बड़े साफ तरीके से कहते हैं, अगर आप यीशु को लोगों के सामने घोषणा नहीं करते और उसे स्वीकारते नहीं और उसे जताते नहीं तो यीशु जो है आपको पिता के सामने वो स्वीकारेगा नहीं. So if God has called you, तो अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है and if you are chosen और अगर आप चुने गए हो or not, और अगर चुने भी नहीं गए हो तो भी it doesn't make any difference. उसमें कोई फर्क नहीं है. That's the basic बालवाडीतला हा पॉइंट आहे. हा बालवाडीपेक्षा खालचं काय असतं पहिलं? पिंजरवाडी, अंगणवाडी का बाहेरच्या अंगणाची वाडी, कोणत्याही वाडीतला असू द्या, हा पहिला पॉइंट है. ये पहला मुद्दा है. मसीह में आए हो तो दुनिया को बताओ कि मैंने यीशु मसीह को मेरे जिंदगी में उद्धार करके चुना हुआ है. लेकिन इसकी जरूरत नहीं कि आप जगह में पूरे दुनिया को जाके बताओ, पहले घर में बताओ. Amen. It starts from there. ये यहाँ से शुरू होता That's है. the base.
यही तो नींव है। You can't hide your salvation. आप आपके उद्धार को छुपा नहीं सकते, Because let me tell you something. क्योंकि मुझे आपको कुछ बताने The दो। more you hide, that much more one day you'll be caught. देखो, जितना आप छुपाओगे एक दिन आप पकड़े जाओगे ही। Yeah. Somebody or someone will see you from coming from church in your family. देखो, कोई तो या कहीं तो लोग आप कोई तो आपको देखेगा कलीसिया से आते हुए, आपके परिवार में से ही कोई Now तो। you may say, how will they catch me now? Because now there is corona, so there is no church. अभी आप कहोगे कि आज मुझे वो कैसे पकड़ेगा, आज तो कलीसिया है ही नहीं क्योंकि आज कोरोना है। बट कोरोना मत डरो ना, यीशु तो जिंदा है ना। वो लोगों को, तुम्हारे घर वालों को सपना दिखाएगा कि तुम मसीह में आए हो। आमीन। मतलब बरं येशू ख्रिस्त एकदम बदमाश दिसतो, बदमाश नाही, तुम्हाला स्वर्गात आणायला बघतोय तो। आमेन. सो पीपल ऑफ गॉड, तो परमेश्वर के लोगों, यू हैव टू डिक्लेयर, आपको घोषणा करना है, you have to tell your family आपको आपके परिवार को बताना है that I have come in the Lord. I have experienced the living God. कि मैं मसीह में आया हूं और जिंदा परमेश्वर का मैंने अनुभव लिया है। But that does not give you the license to insult their gods, their stones, their idols. देखो, ये हुआ इसलिए आपको ये लाइसेंस नहीं मिलता कि आप उनके खुदाओं को, उनके भगवानों को, उनके पत्थरों को, उनकी मूर्तियों को आप गाली दे। नहीं, don't do that. नहीं, ऐसा मत करो। See, what is more easier to break down देखो, or to uproot, I can say. देखो, क्या आसान है जमीन में से उखाड़ने के लिए? A sapling which is just a month old, एक पौधा जो एक ही महीना हुआ है, or a tree which is there for 200 years. या फिर एक पेड़ जो 200 साल से वहां पर खड़ा है। It's naturally a sapling to, pick it out. ये स्वाभाविक है, जो पौधा है उसे तुरंत ही So निकाल you सकते are a हैं। sapling, you are young, and it was easy for you to get uprooted from your system. But for your parents, it is going to take some time. देखो, आपके लिए वो आसान था क्योंकि आप तो एक पौधा थे, तो इसलिए आपके लिए आसान था कि आपको आपके प्रणाली से निकालने के लिए बड़ा ही आसान था। लेकिन वैसे आपके माता पिता के लिए नहीं है, जो बहुत सालों से है। Yeah, it won't take 6,000 years, but देखो, it will लेकिन change. उन्हें बदलने के लिए 6,000 साल नहीं लगेंगे, But God will change them through you. लेकिन परमेश्वर उन्हें आपके द्वारा ही बदलेगा। So now the point is, तो अब मुद्दा यह है, if you have been called of God, अगर आपको परमेश्वर की ओर से बुलाया गया है, if God's finger is upon you, और अगर परमेश्वर की उंगली आपके ऊपर है, you should not be hiding your salvation, तो आपको आपके उद्धार को छुपाना नहीं चाहिए, especially from your family. विशेषकर आपके परिवार से। Now you may say, अब आप कहोगे, my father will die, he'll get a heart attack if he comes to know I have followed the Lord Jesus Christ. आप कहोगे कि मेरे पिताजी जो है मर जाएंगे, उन्हें हार्ट अटैक होगा अगर उन्हें पता चला कि मैं यीशु मसीह में आया हूँ। See, I came in the year 1990 in the Lord. देखो, मैं 1990 इस साल में परमेश्वर में आया। And how many years is now? It's 2020, right? 30 years I've completed in the Lord. 30 years. 30 साल हो चुके हैं कि मैं मसीह में चला हूँ और मैंने खत्म किए हैं। In these 30 years, इन 30 सालों में I've never seen anyone's father or mother dying with the news that you came in the Lord Jesus Christ. मैंने ऐसा आज तक ये नहीं देखा है कि किसी के माता पिता जो है ये समाचार सुनकर कि वो यीशु मसीह में आए, कि आप यीशु मसीह में आए और ये समाचार सुनकर वो मर गए, अभी तक मैंने नहीं देखा है और न कभी ऐसा होगा, क्योंकि यीशु उन्हें मरने नहीं देगा। कोई आमीन बोलेगा क्या? Come on. आमीन। Yeah. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, relax. आराम करो। Don't give your fear excuses. देखो, आपके भय को कारण मत दो। Yeah. Don't give lame excuses. देखो, ऐसे ही आलतू फालतू कारण मत दो। Yeah. If you cannot be a testimony in your own family, then you can't be a testimony anywhere else. अगर आप खुद के परिवार में गवाही नहीं बन सकते तो कहीं और आप किसी के लिए भी गवाही नहीं बन सकते। Jesus said, "Go ye into the world and preach the gospel." यीशु ने कहा, दुनिया में जाकर सुसमाचार सुनाओ। But first in Jerusalem. लेकिन सबसे पहले यरूशलेम में Jerusalem speaks, that means your own family, your own household. और यरूशलेम जो है ये दर्शाता है कि आपके खुद के जिंदगी में आपका खुद का परिवार पहले। Jesus said, when light goes, people light a
candle and put it up under, don't put it under a bushel, but under a candle stand, so that all that are in the house, not the neighborhood, in the house shall see your good works and glorify your Father who is in heaven. Amen. और यीशु ने कहा कि जब बिजली या प्रकाश चला जाता है उस वक्त लोग दिया जलाते हैं और दिया जलाकर उसे नीचे कहीं छुपा कर आपके नीचे नहीं रखते, लेकिन उसे कैंडल स्टैंड पे रखते उसे हैं, कैंडल स्टैंड पे रखते हैं, ताकि उसका प्रकाश जो है आपके घर पे आपके अच्छे कामों के द्वारा वो गिरे। आपके घर में आपके शेजारी नहीं, आपके आसपास के पड़ोसी नहीं, आपके पड़ोसी के घरों में नहीं, आपके घर में उजियाला आए और जो आपके घर वाले हैं वो आपके अच्छे कामों को देखकर आपके पिता, स्वर्गीय पिता की महिमा करे। आमीन। हम दुनिया को अच्छे काम दिखाते हैं, सिवाय हमारे घर में हम दियाबल शैतान होते हैं और बाहर हम देवदूत होते हैं। That is the problem. That's why our ministries don't work. Nothing happens in our life. और इसलिए हमारी जो सेवकाई जो है वो नहीं चलती है और हमारे जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है। And that's where everything is stuck. और यहीं पर सब कुछ आके अटक जाता है। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो। So if God has chosen you, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, you need to understand. तो आपको ये समझना जरूरी है, You have to first tell it in your house. सबसे पहले आपको आपके घर पर बताना है। Now when you do that, Jesus is talking about it furthermore what's going to happen. देखो, जब आप ऐसे करते हो, यीशु आगे और बहुत कुछ इसके बारे में बताता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। They will not give you a garland and welcome you. Oh my God, you accept the Lord as personal Savior. You left our gods. Ah, so nice, so nice. Hey, बिरयानी आना रे। देखो, वो वरमाला पहनाकर आपको तुरंत ही स्वीकारेंगे और वो कहेंगे कि अरे वाह, आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकारा है, कितना अच्छा। अरे बिरयानी लेके आओ रे। हमारे देवताओं को छोड़ा है, देवताओं को छोड़ दिया है, कितना अच्छा है, बिरयानी ले आओ रे। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। Let me read further what happens over here. देखो, हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर ऐसे क्या होता है। Verse 34 onwards. वचन 34 और उससे आगे। Think not that I am come to send peace on earth. ये मत न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति कराने को आया हूँ। Oh, praise the Lord, everybody. Let us all get ready, fasten our seat belts, and let's get ready for having a wonderful flight at 60,000 feet. आइए हम सब जन तैयार हो जाए, अपने कमरबंद जो है वो बांध ले और सीट की पेटी जो है वो बांध ले और 60,000 फीट ऊपर उड़ान लेने के लिए तैयार हो जाए। Think not that I have come to send peace on earth. ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति कराने को आया हूँ। I came not to send peace but a sword. मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। Now listen everybody. Jesus has said, the word of the Lord declares very clearly. He says, I am the Prince of Peace. देखो, यीशु कहता है, वचन कहता है कि यीशु जो है वो शांति का राजा है। And why does he himself say this over here, that think not I have come to send peace on earth? और यहाँ पर वो खुद ऐसा क्यों कह रहा है कि ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति फैलाने आया हूँ। Now listen everybody. अब सभी जन सुनो। I'll elaborate. I will just clear these clouds from over your minds. देखो, आपके मनों में से ये जो बादल है मैं हटा देता हूँ। When you come in the Lord Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह में आते हो, there is a change that takes place. एक बदलाव है जो होता है। And the changes, और बदलाव ये है, not the change of your language, आपकी भाषा जो है ये नहीं बदलती, not the change of your face, आपका चेहरा नहीं बदलता, not your body. आपका शरीर नहीं बदलता, You don't become from black to white. आप काले से गोरे नहीं बनते, You don't become from poor to rich in one night. आप गरीब से अमीर एक ही रात में नहीं बनते। You don't change into blue to purple. आप नीले से जामुनी रंग में नहीं बदलते, जामुनी रंग के नहीं बनते. But लेकिन there's a change that take place in your mind. आपके मन में एक बदलाव होता है। And because of the change, और इस बदलाव की वजह से you start staying away from all your family rituals. आप आपके परिवार के जो सारे रीति रिवाज है उससे दूर रहना शुरू करते हैं। Yeah, you start abstaining yourself from their
idol worship ways. और आप उनके मूर्ति पूजा के जो सारे तौर तरीके हैं उससे आप दूर रहना शुरू करते And हो। because of this, और इस वजह से there forms a variance amongst your family and you. आप में और आपके परिवार में एक झगड़ा झगड़ा शुरू शुरू हो जाता है। and this, because of this variance, और इस झगड़े की वजह से there the Lord says it means this, exactly what the Lord is saying, और यहाँ पर जो परमेश्वर कहता है ये इसी के बारे में कहता है that there now is a sword between you and your family. कि आपके और आपके परिवार के बीच में एक तलवार है And this sword is cutting the relationship which is bound by tradition. और ये जो तलवार है उन रिश्तों को काट रहा है जो रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं। Yeah, now listen everybody, this is very important. आप सभी जन ध्यान से सुनो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। But Jesus says, I'm the Prince of Peace. लेकिन यीशु कहता है कि मैं शांति का राजा हूँ। Means what? इसका अर्थ क्या है? Means when your family opposes you, इसका मतलब जब आपका परिवार आपके विरुद्ध में खड़ा रहेगा, don't speak bad words to them, don't curse them, give them the peace of the Lord Jesus Christ. उन्हें बुरा भला मत कहिए, उन्हें शाप मत दीजिएगा, लेकिन उन्हें प्रभु यीशु मसीह की जो शांति है वो उन्हें दो। Amen. Amen. And react in peace. और शांति में प्रतिक्रिया दो। The other day I was talking to one dealer of mine. उस दिन मैं मेरे एक डीलर के साथ बातचीत कर रहा था। And there was a person who happened to be an anti-Christian person. और वहाँ पर एक ऐसा इंसान था जो मसीह विरोधी था। And when that man left from that place, और जब वो इंसान वहाँ से निकल गया, this dealer was telling me that how he still goes to church and how he lights a candle. He's talking about Catholic people, and how he believes in the Lord Jesus Christ and how his daughter worships the Lord Jesus Christ. और वो ये बता रहा था कि कैसे आज भी वो कलीसिया जाता है, आज भी जाकर वो मोमबत्ती जलाता है, वो कैथलिक रीति रिवाज के बारे में बात करता था और बात कर रहा था, और उसकी जो बेटी है वो भी कैसे कलीसिया जाती है वो ये बता रहा था। वो कैसे यीशु मसीह पर विश्वास रखती है, और वो कैसे यीशु मसीह पर वो खुद विश्वास रखता है, इसके बारे में वो बात कर रहा था। But he's not a Christian, okay? लेकिन वो मसीह नहीं है। And he told me, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा that this gentleman who is an anti-Christian person, ये जो महोदय है जो मसीह विरोधी है, he said to me, उन्होंने मुझसे कहा that they disdain the dying of Jesus Christ. नहीं घृणास्पद देखते हैं। वो यीशु का जो क्रूस पर मरना है उसे घृणास्पद तरीके से देखते हैं। जैसे क्या ऐसा मर गया, क्या 2 किले खाई, इधर खाई, पैरों पे खाई, क्या उसमें क्या होता है? But he said that how ignorant that person is. लेकिन उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो है वो कितने उन्हें कुछ पता ही नहीं, कितना अनपढ़ व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति है। Now after hearing this thing, अब ये सुनने के बाद, you see, I'm a pastor. देखो मैं एक पास्टर हूँ, and then a prophet, और एक भविष्यवक्ता भी हूँ, and then it's me. और उसके बाद मैं खुद हूँ। And after that this man again comes in the office. और उसके बाद ये जो व्यक्ति मसीह विरोधी है वो फिर ऑफिस में आता है। And I am known now that what he is talking about Jesus Christ. और अब मैं जान चुका हूँ कि यीशु मसीह के बारे में ये क्या कहता है। So what do you think I should have done? तो आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए था? See, I could have reacted in anger. देखो मैं गुस्सा कर सकता था। I would have raised that topic. और मैं जानबूझकर उस विषय को मैं बीच में ले आता था, छेड़ता था and created an argument. और वहां पर एक झगड़ा पैदा करता था and skinned him alive there. और उसे वहीं पर जिंदा मैं चमड़ी निकालता था। Because I know how I can talk. क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कैसे बात कर सकता हूं। And after that created a big fight. और उसके बाद एक बड़ा झगड़ा वहां पर निर्माण कर सकता था। But listen, लेकिन सुनो, that's not what I'm called to do. देखो मैं इस चीज के लिए बुलाया नहीं गया हूँ। Jesus is my Lord and he is the Prince of Peace. परमेश्वर यीशु जो है वो मेरा परमेश्वर है और वो शांति का राजा है। So I have to understand. तो मुझे ये समझना जरूरी है because of Jesus there will be a variance in my near and dear ones. कि यीशु की वजह से मेरे बीच में और मेरे जो रिश्तेदार करीबी लोग हैं हमारे बीच में एक अंतर होगा। But लेकिन also at the same time, उसी वक्त if they don't understand Jesus Christ,
अगर वो यीशु को नहीं समझेंगे तो फिर भी I have to maintain peace. फिर भी उनके बीच में, हमारे बीच में मुझे शांति बनाए रखना है। It's very, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now listen. अब सुनो, See, whenever you come in the Lord Jesus Christ, देखो जब कभी भी आप यीशु मसीह में आते हो, you will always have, this gap between you and your family. ये जो दरार है आपके और आपके परिवार के बीच में हमेशा होगा ही, Always. हमेशा। He says over here, verse 34, read once again. Think not that I've come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. और वचन 34 में वो कहता है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर शांति कराने को आया हूँ, मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। Now listen, अब सुनो, this is Corona time. ये कोरोना का समय है And everyone's faith is exposed actually in this time. और इस वक्त में देखा गया तो सभी के जो विश्वास है इसका खुलासा हुआ है। Yeah, everyone's walk level is exposed. हर एक के जो जिस तरीके से वो परमेश्वर के साथ, पर्दाफाश हो गया है। जिस तरीके से वो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं इसका पर्दाफाश हुआ है। या इस कोरोना के वजह से सबके मुखौटे निकल गए। There are many people who say hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord, hallelujah, hallelujah. Very holy people they are. और बहुत सारे लोग हैं जो हालेलुया 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 कहते हैं और वो कहते हैं हे परमेश्वर, और बड़े ही पवित्र लोग हैं वो। Yeah, they have a mask of holiness over their face. उनके चेहरे के ऊपर पवित्रता का एक मुखौटा है। They will walk as if they are the next pope वो ऐसे चले कि जैसे कि वो अगले पोप है or bishop. या अगले बिशप। They are very holy people. वो बहुत ही पवित्र लोग हैं। But if anybody comes in their house and without a mask, लेकिन अगर उनके घर पर बिना मास्क के अगर कोई आएगा, why? क्यों? Because they're scared they'll catch corona. क्योंकि वो डरे हुए हैं कि उन्हें भी कोरोना होगा। Now listen. अब सुनो, See, it's their faith. देखो ये उनका विश्वास है। That's how they have grown. That much they have grown in God. Only that much they have grown in God. वो परमेश्वर में उतने ही बड़े हैं, उतने ही वो परमेश्वर में बड़े हैं। Somebody asked me a question a few weeks ago. कुछ हफ्ते पहले किसी ने तो मुझे सवाल पूछा, How will you conduct the Lord's table once the church starts? देखो परमेश्वर का जो मेज है जब कलीसिया शुरू हो जाएगा उस वक्त पर आप परमेश्वर का मेज कैसे लोगे? How? कैसे? What are you going to tell the people? How you will drink the wine? How you will eat the bread? How? आप लोगों से क्या कहोगे? वो जो रोटी है वो आप कैसे तोड़ोगे और कैसे खाओगे, और वो जो दाखरस है वो आप कैसे पियोगे? I didn't tell him any of my plans. देखो मैंने उन्हें मेरे कोई भी योजना नहीं बताया, But I thought in my mind. लेकिन मैं मेरे मन में सोच रहा I will था, tell everybody, सगळ्यांनी आपापल्या घरातून चपात्या घेऊन या, सगळ्यांनी आपापल्या घरातून द्राक्षरस घेऊन या, आणि मी जेव्हा पिल तेव्हा सगळ्यांनी गटागट खायचं आणि प्यायचं. Over. Come on. People are scared of now even the Lord's table. देखो लोग तो आज के तारीख में परमेश्वर के मेज से भी डरते हैं। Why? क्यों? If someone has corona and if I drink that same cup, अगर किसी को कोरोना हुआ है और उसी प्याले से अगर मैं पीऊंगा तो? my faith is, मेरा विश्वास ये if है, he has got corona अगर इसे कोरोना है and I have no corona, और अगर मुझे कोई कोरोना नहीं है and if he partakes of that cup, और अगर ये उस प्याले से पीता है he'll be healed instantly on the spot. तो ये उसी जगह पे तुरंत ही वो चंगा हो जाएगा। That's the faith I have in the Lord Jesus Christ. प्रभु Come यीशु on. मसीह में यही विश्वास है मेरा। चलो People of God, come on. He is touching the symbolic blood of the Lord Jesus Christ. Come on. चलो परमेश्वर के लोगों, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू का जो प्रतीक है वो उससे छू रहा है। Come on, people of God. अगर वो कोरोना उसके मुंह में जाके उसको कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है, तो बाइबल कहता है कि यीशु का नाम उस सारे नामों से ऊंचा है। अगर यीशु के नाम में वो दाखरस अगर परमेश्वर का लहू बन चुका है, और अगर वो उस दाखरस को छूता है या मुंह से लगाता है, तो जो अंदर दुष्टात्मा कोरोना का बैठा हुआ है वो कैसे क्या है वहां से वहां पर रह सकता है। Come on! People of God, that is the faith I have. परमेश्वर के लोगों यही विश्वास मेरा है। But if मेरे बाजू वाले में अगर विश्वास नहीं है तो वो बोलेगा अभी इसको भी कोरोना हो गया है।
So, I can't push my faith on somebody else. देखो, मैं मेरा विश्वास जो है किसी और पर ढकेल नहीं सकता. Sometimes I forget that there is corona in this world, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि इस दुनिया में कोरोना है. Yeah, I really don't care a damn. देखो, मुझे कोई परवाह नहीं किसी की भी, Nothing. कुछ भी नहीं. But then because of someone else, I have to keep spraying alcohol on everybody. लेकिन किसी और की वजह से मुझे सभी लोगों पर वो सैनिटाइजर छिड़कना पड़ता है. Have to, come on. But still you have to stay clean. That doesn't mean you stay dirty. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गंदे रहे, हमें साफ रहना जरूरी है. कोरोना के आने से पहले मैं सबको बता रहा था कि घर में आने के बाद जाके नहा लो. लेकिन मेरी कौन सुनेगा? आमीन. आमीन. मेरा आवाज बाजू में भी जाता नहीं है. Anyway, so let me go into the word of God. चलो आइए वचन में हम जाते हैं. Verse 35 onwards. वचन 35 से आगे. For I am come to set a man at variance against his father. मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से अलग कर दूं. And the daughter against her mother. और बेटी को उसकी माँ से. And the daughter-in-law against her mother-in-law. और बहू को उसके सास से अलग कर दूं. आता याचा अर्थ हा नाही सगळ्या सुनेंनी लगेच म्हणावं आता येशूने सांगितले सासू बरोबर भांडणं करा, आता भांडणं करा लायसन्सच मिळाले. No, that doesn't mean that. नहीं, इसका अर्थ ये नहीं हिंदी कि में. तुरंत ही आप जो बहुएं हैं, सारे बहुओं जो सारे बहुएं हैं आपके सास से आप तुरंत ही झगड़ा करें, क्योंकि आप कहोगे कि यीशु ने यहाँ पर कहा है कि वो अलग करने आया है, तो तुरंत ही झगड़ा होगा करके कि झगड़ा होगा करके लाइसेंस ही मिला है हमको. तो हमें तो अब लाइसेंस ही मिल गया, हम तो छूट गए हैं झगड़ा करने के लिए. No, that doesn't mean that actually. नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है. Listen everybody. सभी जन सुनो. Whenever you come in the Lord, जब कभी आप मसीह में आते as I हो, told you earlier, जैसे मैंने आपको पहले बताया, there's going to be variances, there's going to be distances, there's going to be differences amongst your own people. देखो, आपके और आप ही के लोगों के बीच में दरारें होंगे, एक अंतर होगा, एक झगड़ा भी होगा, एक अलग होने का प्रक्रिया भी होगा. नहीं, झगड़ा वो हमारे वड़वड़ की वजह से होता है, लेकिन झगड़ा नहीं, या फिर एक अंतर हमारे ही लोगों के बीच में और हमारे बीच में होगा. And what is this difference is, और ये अंतर है, ये क्या है? it is because of the thought process. ये हमारे सोचने की तरीके की वजह से होता है. It is because of the change of the mindset. क्योंकि हमारा मन जो है ये बदल गया है, इस वजह से होता है. Now everybody listen. अब सभी जन सुनो. This is bound to happen. ये होने ही वाला है. Your family is not going to accept your new belief. आपका जो परिवार है आपके इस नए विश्वास को स्वीकारने ही नहीं वाला है. So there's going to be a breaking apart. इसलिए यहाँ पर एक अलग होना ये होने वाला है. Initially there'll be a lot of noise. शुरुआत में बहुत आवाज होने वाला है. There'll be a lot of fights in the house. घर में बहुत सारे झगड़े होंगे. There'll be a lot of arguments. बहुत सारे आपस में आप झगड़े करोगे. Yeah, arguments. What do you call arguments in Hindi? वाद विवाद होगा. वाद विवाद बहुत होगा. Yeah, you will also have people will start abstaining you. और ऐसा भी होगा कि लोग आपसे दूर रहना शुरू करेंगे या आपको दूर रखेंगे. Now why this happens? अब ये क्यों होता है? Listen. सुनो. You see, when we are as one family, everybody, when we are not in the Lord and we are one family with our own family, देखो, जब हम मसीह में नहीं होते हैं और हम हमारे परिवार के साथ एक होते हैं, there is an imprint of their thoughts, their feelings, their ideas, their culture, their lifestyle, their methods, everything upon ourself, upon our DNA. तो जैसे हम रहते हैं उनके साथ एक होकर, तो उनके जो जीने की तरीके हैं, उनके जो सोचने के तरीके हैं, उनके रीति रिवाज जो है, इसका जो है छाप जो है हमारे जिंदगी पर होता है, हमारे DNA पे होता हमारे है. DNA पे होता है. I once went to a marriage, a Christian marriage. एक बार मैं एक मसीह शादी में गया था. And in that marriage I saw that there was this family of the bridegroom. और उस शादी में मैंने देखा कि दूल्हे के जो परिवार के जो लोग हैं, they took what do you call that, मुरमुरे को क्या कहते हैं? I don't know what you say. Fluffy rice, puff rice, right?
puff उन्होंने rice. मुरमुरे लिए थे And I don't know what it was. I from far away thought it was a puff rice, you know. और मुझे नहीं पता था कि वो क्या है, लेकिन दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुरमुरे हैं. And they poured it upon the mother of the bridegroom, and also upon the father, and I think upon even the bridegroom and the bride also. और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो जो मुरमुरे हैं उसके दूल्हे के माँ पर, पिता पर और शायद दूल्हे पर भी उन्होंने डाला. Now, when this happened, और जब ये हो रहा था, I was sitting a bit away from that family, मैं उस परिवार से थोड़ा दूर बैठा था. and I was, I happened to see. और मैंने ये होते हुए देखा. When they saw that I saw, जब उन्होंने देखा कि मैंने उन्हें देखा, they all froze. Everybody froze, and it's like but they couldn't pause the fall of the puff rice upon them. वो जो परिवार है वो तुरंत ही जगह पर ही वो बर्फ बन गए, और वो ये नहीं जानते थे कि वो क्या करे, और जो मुरमुरे जो उन पर गिर रहे हैं वो नहीं रोक पाए. उनको पॉज नहीं कर पाए वो फ्लो को, वो बहाव को वो पॉज नहीं कर पाए. रिवाइंड भी करके उसको डिलीट नहीं कर सके, बिकॉज यू कैन नॉट डिलीट रियल थिंग्स इन लाइफ. क्योंकि जो जिंदगी में होता है वो हम डिलीट नहीं कर सकते. And I was looking at what come on, and I am always at the right time in the wrong place. और देखो, मैं उनके पास देख रहा था, और मैं जो हूँ हमेशा गलत जगह पर सही समय पर होता हूँ. Yeah, and I was looking at them. और मैं उनके पास देख रहा I was था, wondering, what is this? और मैं सोच रहा था कि ये क्या है, What are they throwing at them? ये उनके ऊपर क्या फेंक रहे And हैं. it was a whole packet full they were throwing upon. And then somebody said it is tradition. और एक पैकेट भर उन पर वो उंडेल रहे थे, और किसी ने आकर कहा ये रीति रिवाज है. I said, what riti rivaj? I said, what is this? मैंने पूछा क्या रीति रिवाज है, ये क्या है. I don't know. It's not in the Bible anywhere you throw murmuri on somebody. I don't know what's that. मैं नहीं जानता कि ये क्या है. बाइबल में तो ऐसा लिखा नहीं है कि किसी के ऊपर मुरमुरे उंडेलो. ये क्या है मुझे नहीं पता. What is this thing called as? इस चीज को क्या बुलाते हैं, क्या बोलते हैं. I said, are they going to make bhelpuri afterwards? Something. What is that? मैंने पूछा कि इसके बाद इसे लेकर क्या वो भेलपुरी बनाने वाले हैं. खाली उसमें सके भेलपुरी. What are they going to do with that thing? You know. वो उस चीज को लेकर क्या करने वाले हैं. But anyways, लेकिन जो कुछ भी है, when you come in the Lord, actually come in the Lord. जब आप मसीह में आते हो, सचमुच मसीह में आते Yeah, हो. सचमुच, that is the right word. सचमुच, सच्ची में आते हो, सच्ची में आते हो. You will not agree to many things of what your family culture says and does. आप बहुत सारे चीजों को, या आपके परिवार के जो रीति रिवाज है, उन बहुत सारे चीजों से आप सहमत नहीं होगे. And you will start abstaining yourself. और आप खुद को इन चीजों से दूर रखना शुरू Now, करोगे. because of this thing, और इस वजह से there's going to be a variance between a father and a son, a mother and a daughter-in-law and a mother-in-law. और इस वजह से एक बाप के और बेटे के बीच में, एक माँ और एक बेटी के बीच में, और एक सास और बहू के बीच में एक अलग होना ये होने वाला है. It says further, verse 36. और आगे कहता है वचन 36 And a man's foes shall be of his own household. और मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे. Amen. 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 जास्ती दूर जायची गरज नाही. शत्रू तुमच्या घरातच आहे, जर का तुम्ही नीट ख्रिस्तात आले असाल तर. Okay, let me go further now. तो आइए हम आगे जाते हैं. So he that loveth father or mother more. Now Jesus knows how much we love our family. देखो, अब यीशु जानता है कि हम हमारे परिवार को परिवार से कितना प्यार करते हैं. So he says over here, तो इसलिए वो यहाँ पर कहता है, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है. इधर बीवी लिखा नहीं है ना. अरे शे, इधर बीवी भी होना चाहिए था. बीवी नहीं है यहाँ पर. लॉर्ड, डिड यू रियली राइट देयर वाइफ? और ट्रांसलेटर वाले ने निकाला इसको. I think translator must have removed it off. परमेश्वर, क्या तूने सचमुच वहां पर बीवी लिखा था या फिर ट्रांसलेटर ने निकाल दिया? ट्रांसलेटर वाले ने लगता है निकाला है. हाँ, बिकॉज बीवी का नाम तो पहिला होना चाहिए उसमें. तू तुझ्या बायकोचं ऐकलं म्हणून, दैट्स द फेमस डायलॉग, दैट शुड बी देयर.
वो वहां पर होना जरूरी है। Yeah, it's not there. Okay, होना चाहिए, लेकिन anyways. है नहीं। चलो जो कुछ भी है So, तो you know, that means there is going to be this big conflict of departure from your loved ones. इसका मतलब यहाँ पर ऐसा होता है कि आप जिससे प्यार बहुत ज्यादा प्यार करते हो उनसे एक अलग होने का प्रक्रिया होने वाला Yeah, there's going to be प्रक्रिया ने एक झगड़ा होने वाला है। है। एक झगड़ा होने वाला है या फिर वहां पर एक दरार होने वाला है। नहीं, दरार नहीं, अलग होने की प्रक्रिया में तकलीफ होने वाली है, एक झगड़ा होने, कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट। तकलीफ वहां पर होने वाली है। It's going to pain your heart. आपके दिल में वो दर्द होने वाला When you है। separate from Rahul, when you separate from Rahul, it's going to pain your heart. जब आप राहुल से अलग होने वाले हो तो आपके दिल में दर्द होगा ही। It's going to pain here. वो यहाँ पर दुखने वाला है। And every time when you try to go close to Rahul, someone has to catch you. और हर बार जब आप राहुल के करीब जाने की कोशिश करोगे कोई ना कोई आपको पकड़ लेगा। And then you wonder, और फिर आप सोचते हो how can the one know I'm chatting with Rahul? कि कैसे क्या किसी को पता चलता है कि मैं राहुल के साथ ही चैट कर रही हूँ, कर रहा हूं। कर रहा हूँ। Yeah, and that time only this man has to come when I'm chatting with Rahul. और उसी वक्त को इस इंसान को आना होता है जब मैं राहुल के साथ चैट कर रहा हूँ। How can this happen? ये कैसे हो सकता है? Because he forgets क्योंकि वो भूल जाता है that there's a God in heaven who's alive. कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो जिंदा है। कोई आमेन बोलेगा? आमेन। And he loves you. और वो आपसे प्यार करता है। Amen. Hallelujah. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, so see, this is a very big problem. देखो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। Breaking apart. अलग होना। Yeah, turn to somebody and say, alag hona bolo. अलग होना। Alag hona. अलग होना। It's not easy. ये आसान नहीं है। It is tough. It's difficult. ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही तकलीफ देने वाली चीज Yeah, है। because especially when it is a family. विशेषकर जब ये एक परिवार होता है I'm या not- परिवार में होता है। I don't mean to say you divorce your husband or your wife. मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप आपके पति या पत्नी को तलाक दे दो। That's not what the Bible states. बाइबल ये नहीं कहता। But if the Lord says, if you love your father or your mother more, it means because of your father and mother, you go away from Jesus. और परमेश्वर के वचन में कहता है कि अगर आप आपके माता पिता से ज्यादा प्यार करते हो, इसका मतलब ये है कि अगर आपके माता पिता की वजह से आप यीशु से दूर जाते हो तो That's bad. That's dangerous. तो ये बुरा है, ये बहुत ही खतरनाक है। Jesus says that means he's not worthy of me. यीशु कहता है कि तो फिर ऐसे लोग मेरे योग्य नहीं हैं। When I came in, the Lord knew my mother was the key person who took me to new life. और जब मैं यीशु में नया आया था, मेरी माँ ही वो चाबी है जिसने मुझे न्यू लाइफ ले गई थी। But afterwards, when people of her compound where she was staying, when began to brainwash her and tell her that how bad it is when your son, crosses the church and goes and doesn't come to the church. और लेकिन जिस कंपाउंड में हम रहते थे, उस कंपाउंड के जो लोग जब मेरे माँ से बातें करने लगे, उन्हें ब्रेन वॉश करने लगे कि कैसे वो उस कंपाउंड के जो कलीसिया है उसे लांघ कर वो बाहर जाता है, इसके बारे में दूसरी कलीसिया में जाता है, कितना बड़ा पाप तेरा बेटा कर रहा है। जब मैं असलियत में पाप कर रहा था कंपाउंड के चर्च को लांघ के, तब उनको नहीं दिखा, और जब मैं सही में मार्ग सही कर रहा था कंपाउंड के चर्च को लांघ के, तब उनको दिखा। Anyways, that's a tragedy. लेकिन जो कुछ भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। But लेकिन my mother said to me, you're not going to go to that New Life church anymore now. मेरी माँ ने मुझसे कहा कि इससे आगे तो वो न्यू लाइफ कलीसिया में नहीं जाएगा। You know what shocked me was, आपको पता है मुझे किस चीज की वजह से धक्का लगा? जब मैं अच्छा कर रहा हूं, come on, when I'm doing something right, जब मैं कुछ सही कर रहा हूं, जिंदगी में पहली बार, तब मुझे रोका जा रहा है। और जो मैं सब गलत काम कर रहा था, nobody stopped me. किसी ने मुझे नहीं रोका। I was amazed at how much my mother is in control of Satan. मुझे तो अचंभा हुआ कि मेरी माँ शैतान के कितने कंट्रोल में है।
Before that, I used to think पापी मीत से. I used to think that. मैं ऐसा सोचता था कि मैं सिर्फ मैं ही पापी उसके हूँ। पहले। उसके पहले मैं सोचता था सिर्फ मैं ही पापी हूँ And my mother is so holy. और मेरी माँ जो है कितनी पवित्र है। But after this incident, लेकिन इस घटना के बाद I really felt very nice of myself that I'm so good. मुझे खुद के बारे में बहुत अच्छा लगा कि सचमुच मैं कितना अच्छा हूँ, Because I'm not used of Satan. क्योंकि मुझे शैतान की तरफ से चलाया नहीं जा रहा है। मुझे शैतान की तरह उसको उपयोग, शैतान मेरा उपयोग नहीं कर रहा है, मेरे माँ का उपयोग कर रहा है. Of stopping me. मुझे रोकने का। I knew what I was doing when I was in the world. जब मैं दुनिया में था मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा था। That when my mom never stopped me. उस वक्त मेरे माँ ने मुझे कभी नहीं रोका, When I was doing right, she stopped me. लेकिन अब जब मैं सही कर रहा था तो ये मुझे रोकने लगी। Actually, it was God testing me. देखा गया तो परमेश्वर ही मेरी परीक्षा ले रहा था। जिन माँ बाप के मेहरबानियों के वजह से तू आज चंगा हो रहा है, क्या तू उनका सुनता है और उनका सुन के तू मेरे को त्यागता है, क्या ये परमेश्वर देख रहा था? Be careful, people of God. परमेश्वर के लोगों ध्यान से रहिएगा। Yeah, it's very important that you clear all the tests of life. देखो ये बहुत ही जरूरी है कि जिंदगी के सारे परीक्षे जो है, जो परीक्षाएं जो आपके सामने आएंगे उसे आप पास करें। Yeah, all, not one. सारे, सिर्फ एक नहीं, सारे। You cannot say 10th पास झालो बस आता PhD मिळाली. No. आप ऐसा नहीं कह सकते कि 10वीं पास हो गया तो मुझे PhD मिल गया, नहीं। हो गया PhD मेरा, 10वीं में पास हो गया, मैं हो गया PhD. It doesn't happen that way. You have to clear all the exams till PhD exam. ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको सारे परीक्षाएं जो है आपको देने हैं और उसमें पास होना है PhD के एग्जाम तक। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो। So what is whom do you love more? This is the test that is going to come to you when you come in the Lord Jesus Christ. The first test that is going to come to you, whom do you love more? तो जब आप यीशु मसीह में आते हो, जो सबसे पहली परीक्षा आपके सामने रखा जाएगा वो ये है कि आप किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। Also, if you are already in the Lord and if God has chosen you, if His finger is upon you, और अगर आप पहले से ही मसीह में हो और परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर की उंगली आपके ऊपर है, तो the moment His finger comes upon you, जैसे परमेश्वर की उंगली आपके ऊपर आता है, your life starts becoming segregated for God. आपकी जो जिंदगी है परमेश्वर के लिए अलग होना शुरू होता है। Now, अब again the test begins, whom do you love more? फिर वो परीक्षा शुरू हो जाती है कि अब आप किससे ज्यादा प्यार करते हो। Imagine it's raining heavily outside, cats and dogs on the road. कल्पना करो बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है And there is thunder and lightning crackling. और बिजली कड़क रही है, खा। It's everywhere. There's a lot of reverb of the lightning. और बाहर जो है वो बिजली की कड़कने का जो दरार है वो बहुत है। And your 5 kids and 1 wife are now within the blanket, nicely cozily tucked up. और आपके 5 बच्चे और आपकी बीवी उस कंबल के नीचे बैठे हुए, सब बहुत ही अच्छी तरीके से ऊबदार तरीके से मस्त बैठे हुए, बैठे, and you are watching TV on inverter. और आप इन्वर्टर पर टीवी देख रहे हो And you're watching, supposing, say, which is the nice, huh? Twister, yeah, my favorite movie. और आप ट्विस्टर ये चित्र जो है वो देख रहे हैं। Picture देख रहे हैं, Picture चित्र देख नहीं, रहे। picture देख रहे हैं, picture, हाँ. Now, अब and suddenly your pastor calls up. अचानक से आपके जो पास्टर है आपको फोन करते हैं। There is a sister Bengali. एक बंगाली सिस्टर है, She's got, just now, she has got her roof fell. अभी अभी उनका जो छप्पर है वो गिर गया है। Can you go and help her? क्या आप जाकर उन्हें मदद कर सकते हो? And all the kids look at you. और आपके सारे बच्चे आपके पास देखते हैं And you look at them. और आप उनके पास देखते हो And you look at your wife. और आप आपके पत्नी के पास देखते हो And the wife looks at you. और आपकी पत्नी आपके पास देखती है And she does like that. और फिर वो ऐसे करती है And you look at her. और आप उनके पास देखते हो, उसके पास देख रहे उसके हो. पास देख रहे हो और And your kids look at you. और आपके बच्चे आपके पास देख रहे हैं And they all look at you and you look at everybody. और आपके बच्चे जो है आपके पास देख रहे हो, सभी जन आपके पास And you देख रहे हो और आप slowly सबके पास and you देख- slowly start removing the blanket off. और आप धीरे धीरे जो कंबल है आप निकालना शुरू कर देते हो And your wife's hand was in your hand. और आपके पत्नी के हाथ जो है आपके हाथों में थे And your hand and on your lap there was popcorn.
और आपके हाथों में और आपके आपके पैरों के बीच में आपने बीच में नहीं, पैरों के ऊपर. पैरों के ऊपर आपने पॉपकॉर्न रखा हुआ था. And then you remove it and put it on her lap. तो आप निकाल कर आपके पत्नी के पैरों के ऊपर रख देते हो And she takes her hand and और वो आपके हाथ को लेकर झटक देती है. and then you try to remove the complete blanket off. और फिर आप कोशिश करते हो पूरी कंबल पूरी तरीके से बाहर निकाल ले. And the kids catch you. और आपके बच्चे जो है आपको पकड़ लेते They say, हैं. Papa, where are you going, Papa? वो कहते हैं पापा आप कहाँ जा रहे हो पापा. And you are like, and और आप ऐसे प्रतिक्रिया देते रहते हो. कैसे? I have to go. मुझे जाना पडेगा. And your wife says, और आपकी पत्नी कहती है एवढं त्यांना काळजी त्यांची स्वतः जात नाही ते बंगाली बाईची. तुम्हाला काय पाठवायची गरज आहे? तुम्हाला का पाठवत आहे? हा, ओढताना जर का काळजी त्यांची तर त्याला जाऊ दे ना. तुम्हाला काय? सेवक कौन है? तुम्ही का ते? आमेन. ऐसा होता है. आई नो कोई आमेन नहीं बोलेगा वहां से. बोला? हाँ, प्रेज गॉड. जिसने बोला मीट मी इन दिस वीक. हालेलुया. गॉड ब्लेस यू. जिसने आमेन बोला इस हफ्ते में आप मुझे मिलो. हालेलुया. नाउ अब whom do you love more? आप किससे ज्यादा प्यार करते हो? This is the test. यही परीक्षा है. This is the test. यही परीक्षा है. This is the test. यही परीक्षा है. And now whether you pull the blanket up and tell pastor, I've got loose motions, I can't come. और आपका चुनाव है कि आप वो कंबल को फिर ओढ़ लेते हो और पास्टर को फोन लगाते हो और कहते हो कि मुझे जुलाब है, मैं जोर से लगे है. जोर से जुलाब हुए है, मैं नहीं जा सकता. Or then या फिर you tell your wife, keep quiet, I have to go. आप आपके पत्नी से कहते हैं चुप बैठ, मुझे जाना ही है. Now this is the choice that each time when if you are chosen, turn to somebody and say, if you are chosen. चलो किसी के पास मुड़कर उनसे कहो अगर आप चुने गए हो, अगर आप चुने गए हो. किसी के पास मुड़कर कहो अगर आप चुने गए हो. Each time this will be the test you will go through. हर बार आपके सामने ये परीक्षा रखी ही जाएगी और आपको इसमें से जाना ही पड़ेगा. Yeah, it is a key. It is a prime test which every man of God goes through. ये बहुत ही मुख्य परीक्षा है जो हर परमेश्वर को सेवक को इसमें से जाना ही पड़ता है. Now listen everybody. अब सुनो सभी. This is something which is so delicate. ये बहुत ही नाजुक है. Because why I say delicate? मैं नाजुक क्यों कहता हूँ? Because here really the man of God or the woman of God is tested at the prime of their I can say their emotions. क्योंकि इसमें जो परमेश्वर के सेवक और सेविकाएं हैं उन्हें उनके भावनाओं के शिखर पर उनकी परीक्षा होती है. उनके शिखर तक उनकी परीक्षा होती उनके है. भावना के शिखर तक उनकी परीक्षा होती है. Prime of their emotions. उनके भावना के शिखर तक. That who is of prime importance in your life. कि उनके जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? You see, the problem is not the problem, but the blessing is. आप देखो जो आशीष वो ये है. नहीं, problem is. समस्या ये है. लेकिन प्रॉब्लम नहीं बोल सकते हम उसको. ब्लेसिंग इज. लेकिन उसे हम समस्या नहीं कह सकते. तो आशीष ये है that our God is a very jealous God. कि हमारा जो परमेश्वर है जो बहुत ही ईर्ष्या रखने वाला परमेश्वर He है. doesn't like anyone coming between him and you. उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि आपके और उसके बीच में कोई आए. This is man's idiocy. ये मनुष्य के पागलपन है. मूर्खता है. मूर्खता है. That we feel हमारे बच्चे हमारे हैं, हमारी बीवी मेरी है. Means हमारी बीवी नहीं, मेरी बीवी मेरी है, हमारे बच्चे हमारे हैं. We feel it's ours. हमें लगता है ये सब कुछ हमारा है, हमारा है, हमारा ये है. हमारा भी हमारा नहीं है, वो उसका है. आमीन. ये हम भूल जाते हैं. We forget this thing. हम ये भूल जाते हैं. And when the son becomes big, when he is earning around 95,000 rupees per month, जब बेटा बड़ा हो जाता है और हर महीने वो 95,000 रुपए कमाता है, we feel so proud of it.
हमें उसके बारे में कितना गर्व लगता And महसूस even if होता है। even if he doesn't give his tithes and offerings in the house of the Lord, और अगर वो परमेश्वर के घर में दशमांश और दान नहीं देता तो भी we feel, oh, it's okay, so what? He's my son. हमें लगता है हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो क्या हुआ, वो तो मेरा बेटा ये है। बाबा, तू मेरा नहीं है, तू उसका है, और तू अगर उसके घर में नहीं देगा तो तू रास्ते पे भिखारी बनेगा, ये ध्यान में रख। आमेन। We forget this thing. ये चीज हम भूल जाते हैं। ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इतनी खूबसूरत, इतने लंबे बाल, इसके लिए मैं राजकुमार देखेगा। परमेश्वर ने उसके लिए ऊपर से भिखारी चुना हुआ है। You know, you don't brag about your plans before God. देखो, आपके योजनाओं के बारे में परमेश्वर के सामने फुशार किया मत मारो। Yeah, don't tell God your plans. Someone in heaven will laugh loudly. देखो, परमेश्वर को आपके योजनाएं मत बताना, क्योंकि स्वर्ग से कोई तो बहुत ही जोर जोर से हंसेगा। असं का? हा, कर। लग्न करतोय तू? 25व्या वर्षी कर। After 50 years, he's still unmarried. Hallelujah. 50 साल के बाद भी अभी भी उसकी शादी नहीं हुई है। That's what Abraham said to Sarah. The moment he got married, we'll have a son in the next year. और यही तो अब इब्राहिम ने सारा से कहा था कि जैसे हमारी शादी होगी अगले ही साल हमारा एक बच्चा होगा, बेटा होगा। ऐसा ही होता है। कर, बोल तू। Anyway, let me go further now. जो कुछ है, लेकिन हम आगे बढ़ते He हैं। that loveth father or mother more than me is not worthy of me. He that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Verse 38 now. जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं। और वचन 38 अब। And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. और जो अपने क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। What is the meaning of the statement? इस वचन का अर्थ क्या है? Cross means sacrifice. क्रूस का अर्थ है अर्पण। He that does not sacrifice his pleasures is not worthy of me. वो जो उसके खुद के खुशहाली को, आनंद को या आनंद को, या मजे को वो अर्पण नहीं करता, वो मेरे योग्य नहीं। या मला आता नहीं पास्टर, ये हफ्ते में हमने डिसाइड किया, हम साल में 6वें महीने में हम घूमने जाते ही है। हम 6वें महीने में हम ना पास्टर, हम 2 हफ्ते का ब्रेक लेके हम लोग, मेरे सब लोग दोस्त है ना, ये लॉर्ड में आने से पहले ही हम जाते थे। मैं ये छोड़ नहीं सकता। हाँ, मैं वो सिस्टम हैंडलिंग करता हूँ, मैं वो कीवर्ड बजाता हूँ चर्च में, लेकिन ये 2 हफ्ते में कलीसिया नहीं आऊँगा, क्योंकि वो हमारा वो दोस्तों के साथ प्लान बनाए पहले से ही है। 10 साल से हम लोग कर रहे, हर 6वें महीने में हम ब्रेक लेते हैं, 2 हफ्ते के लिए घूमने जाते हैं। ये हमारा ऐसा ही है। लेकिन तू परमेश्वर की सेवकाई करता है, लेकिन ये 2 हफ्ता परमेश्वर समझता है ना। बाइबल कहता है परमेश्वर हमारा समझने वाला परमेश्वर है। लेकिन आप नहीं होगे तो फिर कौन संभालेगा? लेकिन मैं दिल से तो होऊंगा ना। परमेश्वर दिल देखने वाला परमेश्वर है। You can say anything to a man, but no excuses work to God. देखो, आप एक इंसान को कुछ भी कह सकते हो, लेकिन परमेश्वर के सामने कोई भी कारण नहीं चलेगा। Listen everybody. सभी जन सुनो। When you pick up your cross and follow me, Jesus said. जब यीशु कहता है कि आप आपके क्रूस को उठाकर मेरे पीछे हो लो, जो तुम्हारी लालसाएं है, जिसमें तुम मजा लेते हो, अगर तुम उसको सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, you cannot serve the Lord. अगर आप उन चीजों का अर्पण नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते। Let me tell you something, everybody. मुझे आपको कुछ बताना है। This is the most difficult part for any believer who is chosen to go through. देखो, यही सबसे मुश्किल घड़ी है हर एक विश्वासी को, जो नहीं, मुश्किल घड़ी नहीं, मुश्किल भाग है। मुश्किल भाग है हर एक मसीह को, जो हर एक विश्वासी को जो चुना गया है, जो चुना गया है परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, ये उसके लिए सबसे मुश्किल भाग होता है, क्योंकि उसको अपने क्रूस को, उसको he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. और जो अपने क्रूस को लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। He that findeth his life loseth it, and he that loseth his life for my sake shall find it. जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। अरे यार, ये क्या है? Why did I sign up to become a translator यार? अरे यार, मैं ये क्या है, मैंने क्यों कहा कि मैं ट्रांसलेटर बनूंगा? यार,
अरे यार, because of that now pastor is telling me get up early in the morning and read 10 chapters every day. यार क्या है ये? यार इसकी वजह से पास्टर मुझे कहते हैं यार सवेरे सवेरे उठ और 10 चैप्टर पढ़ यार, यार क्या है क्या ये? है यार? Come on, I get up. I get so tired the whole day working in the office. चलो ऑफिस में काम करके मैं पूरा दिन थक जाता हूँ. Come on यार, what pastor understands? He doesn't work anywhere. चलो यार पास्टर को समझ में नहीं आता, वो तो कहीं काम भी नहीं करते. बेकार आदमी है वो, घर में पड़ा रहता है खटिए पे ऐसा तान के. उसको क्या है, उसको क्या है, उसको क्या है, क्या है उसको क्या है, क्या है. मेरे को सुबह से लेके रात तक काम है. रात को 10 बजे घर पे आता हूँ. घर में आने के बाद में वो आदमी का फोन आता है, बोलता है 10 चैप्टर पढ़े क्या. और उसके पढ़ने के लिए बोलता है, मैं बोला उस दिन पास्टर मेरे को टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए. बोलता है सुबह 3 बजे उठ. 3 बजे 3 दिखता कैसा है सुबह का, मैंने अभी तक देखा नहीं जिंदगी में. 10 चैप्टर के काय को ट्रांसलेटर बना, मैं काय को बना रे. और बाद में वो कोई बोलता है, someone says why did I become that system handler. अरे यार और कोई कहता है कि अरे यार मैं ये सिस्टम हैंडलर क्यों बना. because of that I had to come in the morning at 7 o'clock in that damn hall there. और इसकी वजह से यार उस हॉल में मुझे सवेरे 7 बजे जाना पड़ता है. पब्लिक आता है 10 बजे, मुझे 7 बजे जाना पड़ता है. ये क्या है? ऐसा कभी होता है क्या? अरे समझे यार, पब्लिक 10 बजे आएगा, मैं 9 बजे आएगा, समझे. ये पागल आदमी सुबह 7 बजे बुलाता है. अच्छा है 5 बजे नहीं बुलाता. उधर मैं क्या करूं? 7 बजे आके उधर क्या करूं? काय को बना ये सिस्टम हैंडलर यार. आई डोंट नो व्हाई. मुझे नहीं पता क्यों. He that loses his life for me shall find it. जो मेरे कारण उसके प्राण को खोता है वही उसे पाएगा. Amen. 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 I know people who love their life more than God. They are sick in their bodies today. You take it from me, write it down and take it. देखो मैं लोगों को जानता हूं जो खुदा से ज्यादा खुद के प्राण पर वो प्यार करते हैं और आज के तारीख में वो उनके शरीर में बीमार है. ये मेरे से लिखवा के ले लो. I have seen so many people who have loved their life more than God. मैंने कितने सारे लोगों को देखा है कि परमेश्वर से ज्यादा वो खुद के ऊपर प्यार करते हैं. But those who have given their life for God, they are blessed. Hallelujah. लेकिन जिन लोगों ने उनकी जिंदगी परमेश्वर के लिए दे दिया है उनकी जिंदगी आशीषों से भरा हुआ. हालेलुया. People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो. But it is highly imperative that after being separated from family, you need to start being with God, not the people of God. लेकिन ये बहुत ही जरूरी है कि आपके परिवार से अलग किए जाने के बाद आप परमेश्वर के साथ रहना शुरू करो, ना कि परमेश्वर के लोगों के साथ. मी देवामध्ये आले ना, ती सिस्टर आहे, तिला डिवाइन रेव्हलेशन येतं म्हणून मी तिच्या घरी जाऊन बसते. दिवसभर आम्ही वचनावर गप्पा मारतो. दिवसभर ती ना वडापाव बनवती, ती काय ते अजून असतं रे, पोहे बनवती, ती शिरा बनवती. मग आणि असे ना आम्ही उपीट चिपीट पिपीट खातो, सगळ्यात तिपीट खातो आणि दिवसभर वचनावर गप्पा मारत बसतो. आणि मी ना जेव्हापासून मी ख्रिस्तात आले, मी तिच्याच घरीच जाऊन बसत असते. जशी मरिया गेली इलिशिबेच्या घरी. और देखो हम मसीह में आए और वो बहन है जो बहुत ही मसीह में बहुत ही आगे और उन्हें बहुत सारे जो मैं मसीह में आई, मैं मसीह में आई हूँ और वो जो सिस्टर है उन्हें बहुत ही महान प्रकाशन मिलते हैं. इसलिए मैं उनके पास जाती और दिन भर उनके साथ बैठती और दिन भर उनके साथ बैठकर हम उपीट और चिपीट लिपीट टिपीट पोहे टोहे पोहे लोहे ये सब खाते हुए हम परमेश्वर के बारे में ही बात करते रहते हैं. या होल डे, जैसे मरियम, और ये पूरा दिन जैसे मरियम एलिजाबेथ के पास गए थे उस तरीके से. जैसे ही उसको मालूम पड़ा, गब्रियल दूत उसको आके बताया कि तेरे इसके अंदर तेरे गर्भ में यीशु का गर्भ आया है, तुरंत जैसे मरियम भाग गई एलिजाबेथ के पास, वैसे भी मैं भी मेरे उस सिस्टर के पास जाके दिन भर बैठती हूँ और हम परमेश्वर के बारे में ही बात करते हैं. पोहे खाते हुए, पोहे और लोहे. हाँ, उसके पोहे इज जस्ट लाइक लोहे. मेरे दांत सब टूट गए खा के. लेकिन हम उसके पास जाके, क्या शेंगदाने देवा, उस दिन चबाया 2 टुकड़े शेंगदाने के ने दांत के.
इतना टिकाऊ खाना खाने की आदत नहीं है मुझे। मजबूत और टिकाऊ खाना. Anyway, people of God. लेकिन जो कुछ भी परमेश्वर के लोगों, मरियम फिर उसको छोड़ के वापिस आई खुद के घर में. बाइबल आगे भी पढ़ो, आमेन, उधर भी मत अटके रहो. एक माणूस धरायचा देवातला आणि त्याच्याच मागे चिटकून राहायचं, आणि तो जे सांगेल पूर्व दिशा. हिंदी में बोला भी, और एक ही आदमी के साथ जो ये मसीह में है उन्हीं के साथ चिपके रहना और उसको पकड़ने का, उसे पकड़ना, उसके साथ चिपके रहना, और वो जो कहेगा वही पूरब दिशा. बस खत्म, दी एंड. प्रेषू म्हटला मी तुम्हाला दुसरा पाराक्लेत देईल, त्याचं नाव पवित्र आत्मा आहे. तो माणूस नाही, और ती बाई नहीं. और यीशु ने कहा कि मैं तुझे दूसरा पाराक्लेत दूंगा, और वो पाराक्लेत जो है वो दूसरा आदमी, वो भाई नहीं, वो भाई नहीं, पवित्र आत्मा है. लेकिन वो पवित्र आत्मा है. Yeah. आमेन. You have to draw close to the Holy Spirit, not to any man. आपको पवित्र आत्मा के करीब जाना है, ना कि किसी इंसान के. Let us read that verse, Luke chapter 1, everybody, and verse 80. और आइए हम वो वचन को पढ़ते हैं. लूका रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय वचन 80. And the child grew and waxed strong in spirit and was in the desert still the day of his shewing unto Israel. और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा. Amen. When God chooses you, आमेन. जब परमेश्वर आपको चुनता है, you have to separate yourself from people and start being yourself with God. आपको लोगों से दूर रहना शुरू होना है और आपको खुद को परमेश्वर के साथ अलग होकर रहना है. That doesn't mean you go on the internet and start studying the Bible study on the internet. इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटरनेट पर जाकर बाइबल स्टडी वहां पर करते रहो. Go on your knees and start reading the word and allow the Holy Ghost to teach you the word of God. आपके घुटनों पर जाओ और बाइबल को पढ़ते रहो और पवित्र आत्मा को परवाना दो कि वो आपको बाइबल सिखाए. और कुछ समझ में ना आए तो लगेज मोबाइल उठाओ और लगाओ फोन 9673674411. पास्टर इसका मतलब क्या है? नहीं, ask the Holy Ghost, इसका मतलब क्या है? And if he doesn't speak, go in fasting and prayer and break your knees. Go into fasting and prayer. Anoint yourself with the anointing of the Holy Ghost every day, and one day he will speak to you the revelations of the word of God. और समझ में ना आए तो पास्टर को फोन ना कीजिए, लेकिन पवित्र आत्मा से पूछिए, उपवास करो और अपने घुटनों को तोड़ो, दुआ में तोड़ो और तब तक उपवास करते रहो, पवित्र आत्मा को पूछते रहो जब तक आपको पवित्र आत्मा एक दिन उस वचन का प्रकाशन का खुलासा आपको नहीं देता. उस दिन तक आप उसी उपवास में और प्रार्थना में रहो और उस वचन को पढ़ते रहो और खुद को पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरते रहो. Amen. Don't go to any human. Yes, you can take a bit of guidance, it's okay, but do not make another human a god. देखो, किसी इंसान के पास मत जाओ. हाँ, ये ठीक है कि किसी से आप थोड़ा मार्गदर्शन ले सकते हो, लेकिन किसी इंसान को दूसरा परमेश्वर मत बनाओ. Amen. Amen. So the first process that begins if God has chosen you, and that is separation. तो अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो सबसे पहली प्रक्रिया जो आपके जिंदगी में शुरू होगी वो ये है कि आपको अलग किया जाएगा. Look at Joseph. He was chosen of God. यूसुफ के पास देखो, उसे परमेश्वर की ओर से चुना गया था. His brothers separated him from their family. उसके भाइयों ने ही उसे परिवार से अलग कर दिया. Look at Moses. He was chosen of God. मूसा के पास देखो, वो परमेश्वर की ओर से चुना गया था. He was set apart from the day of his birth. उसके पैदा होने के दिन से ही उसे अलग किया गया. He was so much apart that he was not even shown to anybody as a child. वो उसे इतना दूर अलग किया गया कि वो बच्चा करके वो जब पैदा हुआ तब भी उसको एक बच्चा करके किसी को दिखाया नहीं गया कि देखो मुझे बेटा हुआ है. इतना अलग किया था मूसा को. Think about it. इसके बारे में सोचो. Now think about it, people of God. If you are chosen of God, तो इसके बारे में सोचो, परमेश्वर के लोग, अगर आप परमेश्वर की ओर से चुने गए हो तो. Look at David. When Samuel came in his house, he was not found in the family. His father didn't count it that credible
resemble his presence that David should be when the prophet of God comes. देखो इसके बारे में देखो परमेश्वर के लोग कि जब समूएल दाऊद के घर में आए तब उस वक्त दाऊद उसके परिवार के लोगों के साथ नहीं था और उसके पिता को यह जरूरी भी नहीं समझा कि वो उसके परिवार के गिनती में आए। उसकी उपस्थिति इतनी जरूरी है कि जब परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का भविष्यवक्ता उसके घर पे आए तो मेरा एक बेटा, ये बेटा वहां पर होना जरूरी है। उसके पिता को भी इतना जरूरी दाऊद की उपस्थिति नहीं लगी। ऐसी दाऊद की जिंदगी थी। This is if you are chosen, you are a separated person. तो अगर आप चुने गए हो तो आपको अलग किया गया है, People of God. परमेश्वर के लोगों। But you are trying to always, clip onto someone, clip onto someone, clip onto someone, clip onto someone. लेकिन आप हमेशा कोशिश करते हो कि किसी के साथ जुड़ जाए, किसी के साथ जुड़ जाए, किसी के साथ चिपक जाए। No. नहीं, Every time God has separate you. Every time God has separate you. हमेशा परमेश्वर को आपको अलग करना पड़ता है, हमेशा परमेश्वर को आपको अलग करना पड़ता है। 40 साल हो गए, अभी तक परमेश्वर का काम यही चल रहा है आपके जिंदगी में, आपको अलग करना, अलग करना। बार बार निकलते हो, दूसरे को चिपकते हो, इससे निकलते हो, दूसरे को चिपकते हो, इससे निकलते हो, दूसरे को चिपकते हो। अरे बस हो गया ना यार, परमेश्वर से चिपको। आमीन। Amen. People of God, think about it. परमेश्वर के लोग इसके बारे में सोचो। How many years of God we are wasting? हम परमेश्वर के कितने तो साल जाया कर रहे, वेस्ट कर रहे, ऐसे गवा रहे हैं हम। Because he wants to talk to you. क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता He है, wants to shape you. वो आपको आकार देना चाहता है, He wants to be the potter and you the clay. वो कुंभार बनना चाहता है और आप वो मिट्टी बने, ये वो चाहता है। He wants his hands alone, his only hands to shape you. वो चाहता है कि सिर्फ उसी के और सिर्फ उसी के हाथ आपको आकार दे। But no, you. नहीं. लेकिन आप नहीं, You will want everyone's hand on your body, everywhere on your shaping. आप चाहते हो कि आपको आकार देने में सबके हाथ लग जाए। Yeah, this man of God, that man of God, this prayer tower, that prayer tower, this Bangla tower, this whatever. ये परमेश्वर का सेवक, वो परमेश्वर का सेवक, ये परमेश्वर का सेवक, वो परमेश्वर का सेवक, ये प्रेयर टावर, वो प्रेयर टावर, ये बंगला टावर, वो बंगला टावर, सब कुछ। ये भूत बंगला है, एवरीवन का हाथ ऐसा लगना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। Your God is a jealous God. आपका जो परमेश्वर है वो ईर्ष्यवान परमेश्वर है। Yeah, if you don't separate, he will separate you. अगर आप अलग नहीं होगे तो वो आपको अलग करे। Yeah, out you go. बाहर निकल जाओ। And यही चलता है, यही चल रहा है इतने साल। Separation begins. Point number 1. If God has chosen you, God's work begins by separation. अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो मुद्दा क्रमांक 1, परमेश्वर का कार्य आपको अलग करने से शुरू होता है। Next week we'll see point number 2. अगले हफ्ते हम मुद्दा क्रमांक 2 देखेंगे। Amen, amen, amen. I can give you the point number 2 right now. देखो मुद्दा क्रमांक 2 में अभी आपको दे सकता हूँ। I'll just give you the topic and I'll close here. बस मैं आपको उसका शीर्षक देता हूँ और मैं यहाँ पर बंद करता हूँ। That is rolling down. ऊपर से नीचे गड़गड़ाते आते हैं। How? लोकांना गडगड्यामध्ये देवाला फार आवडतं. हालेलुया, प्रेज गॉड. या लोकांना गडगडून खाली आणण्यामध्ये देवाला फार आवडतं ना. It's awesome. Hallelujah. Let us all give the Lord a mighty hand of praise. Everybody, come on everywhere. Come on.